Hello everyone, welcome to Rutap. My name is Santosh and today we are going to do top 5 MCQs with respect to the topic process costing, right? So before getting into the first question now, let's understand what is this process costing. So it is one of the methods of costing, right? And the method of costing that should be adopted by any industry or firm is dependent upon the nature of industry in which they are operating. So depending upon the business activity, they are going to decide which method of costing is suitable for them, right? So for the methods of costing, we have unit or output costing, we have batch costing, we have job costing, we have contract costing. Just like that, we have also process costing. So in the industry or firm where manufacturing is done, the goods manufactured are getting passed through various processes. In those type of industries, we use process costing method. Please try to understand this. Suppose we have the chemical industry or paint industry. So what happens? The raw materials are passed through process 1, and then the result of process 1, the output of this process 1 becomes the input of process 2, and then the output of process 2 becomes the input of process 3. So that's how the goods or raw material is getting passed through various processes before we have the final product or good. So in those type of industries we use process costing. ठीक है, बात समझ में आ गई. अब let's move ahead with our first question. So first question says, which type of costing method is useful in manufacturing of products like steel, paper, medicines, soaps, chemicals, rubber, vegetable oil, varnishes, paints? So in these type of products, which method is useful to apply or which method is suitable, right? And there is also one more information given to you, where the production process is continuous and output of one process becomes the input of the following process. So obviously in this case we use process costing. We don't use standard cost. Standard costing is basically a technique of costing, so it is not a method. So this becomes irrelevant. This option becomes irrelevant, so it is eliminated. And second option is process costing. It is the correct answer. Contract costing is also a method. Marginal costing again a technique of costing, not the method. So correct option should be option number B, that is process costing, as we have discussed, right? Okay, let's move to the second question, which says, which of the following statement is correct regarding normal loss? So first let's try to understand what is this normal loss. See what happens whenever a product is getting passed through various processes. Is it necessary कि suppose we are basically giving the input of 1000 units, suppose, right, in a process. So is it necessary we are going to have output from this particular process as 1000 unit only? Is it necessary? No. It might happen na कि during the process certain units of raw material gets basically scrapped or they get lost, right, during the process. ऐसा हो सकता है ना कि जैसे केमिकल इंडस्ट्री है, समथिंग इज इवेपोरेटेड, कुछ इवेपोरेट हो गया प्रोसेस में ही, और वो एक्सपेक्ट करती है इंडस्ट्री कि कुछ ना कुछ जो हमारा आइटम है, रॉ मटेरियल है, वो कुछ ना कुछ खराब हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस. ये बहुत ही ऑब्वियस नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप की इंडस्ट्री है, तो वो क्या स्टैंडर्ड ले रहे हैं नॉर्मल लॉस का, कि 10% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रोसेस में लॉस हो जाएगा, या फिर 5% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या 15% एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंडस्ट्री, बट इट इज एक्सपेक्टेड दैट सर्टेन goods are going to be lost during the process itself. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है अगर 1000 यूनिट हमने इनपुट रखे तो आउटपुट भी हमें 1000 यूनिट मिलेंगे. तो जो फर्म मैन्युफैक्चर कर रही है, जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, अगर वो एक्सपेक्ट करती है कि इतना लॉस होगा, तो दैट लॉस वी कॉल नॉर्मल लॉस. बात समझ में आती है? लेकिन अगर मानते हैं कि कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि 10% लॉस होगा, तो 1000 का 10% कितना हो गया? 100 यूनिट्स. तो कंपनी को लग रहा है कि 100 यूनिट्स लॉस हो जाएंगी, that is your 10%. But in actual, the output company get is 800. That means 200 units were lost during the process. That is your 20%. तो यहाँ पे extra loss हो गया है. So expectation was of 10%, but actual loss is of
20%, सो द डिफरेंस इज अब नॉर्मल लॉस। चमका, समझ में आई बात? जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नॉर्मल लॉस है, बट जो एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर गया लॉस, दैट इज योर अब नॉर्मल लॉस। नाउ कम back to the question coming back to the question, it says which of the following statement is correct regarding normal loss. So it is asking you about the normal loss only, not the abnormal loss. Okay, normal loss is generally determined as a percentage of input. Yes, it is correct. मैंने बताया ना अभी एक एग्जांपल से कि मान लेते हैं कि 10% ऑफ इनपुट लॉस हो जाएगा या 20% इनपुट लॉस हो जाएगा, तो इट इज जनरली स्टैंडर्ड टू कैलकुलेट इट एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट. सेकेंड स्टेटमेंट सेज नॉर्मल लॉस may arise due to evaporation. हाँ, ये भी सही है, that is also correct, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री में ये नॉर्मल है कि इवेपोरेशन से लॉस हो जाता है कुछ ना कुछ इनपुट. नॉर्मल लॉस मे अराइज ड्यू टू थेफ्ट. नहीं, थेफ्ट इज नॉट नॉर्मल लॉस. ऑब्वियसली हम अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ चोरी हो जाएगी? ये नॉर्मल लॉस नहीं है, ये अब नॉर्मल लॉस है. वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, राइट? बट इफ इट हैपेंड then it comes under the category of abnormal loss. It is incorrect. D option says both A and B. So your option A is correct, B is correct. So answer should be option number D, that says both A and B are correct. Option number D is your correct answer. ठीक है, clear? Now let's move to the third question that says which of the following statements is or are incorrect. So in the statements we have to find incorrect statement, and wherever I am going to cross it, those statements are going to be the answer. Okay, abnormal loss is the unexpected loss. Absolutely correct. This is the correct statement, but we have to find the incorrect statement. ठीक है, ध्यान देना, we have to find the incorrect statement. तो abnormal loss तो unexpected था ही, normal loss था expected, और exceeding that loss everything is unexpected, and that comes under the category of abnormal loss. ठीक है. Second statement says abnormal loss is the difference between the actual and the predicted loss. This statement is also correct. We have discussed ना कि actual and predicted loss के बीच में जो difference होगा, that is your abnormal loss. Third statement says abnormal loss is simple to estimate in advance. No, not at all. We estimate the normal loss, not the unexpected, because abnormal loss is unexpected na. How can you basically estimate the unexpected thing, right? So it is not simple to estimate in advance. This is the incorrect statement, and we are asking, question is asking about the incorrect statement. So option number 3 is your correct answer here. ठीक है, बात समझ में आती है? Okay, now let's talk about the question number 4 that says total input of goods is 2000, closing stock is 200 units, which is 50% complete, scrap is 250 unit, scrap means loss, and after they were 100% complete. Okay, what is the equivalent production if the normal loss is 10%, finished goods is 1550? So before getting into the solution of this question now, let's try to analyze what is this equivalent production. अगर ये समझ में बात आ गई कि equivalent production होता क्या है, तब this question becomes easy, otherwise this becomes difficult. तो पहले equivalent production समझते हैं. मान लो फॉर एग्जांपल चेयर की मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है या फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म है, वो चेयर मैन्युफैक्चर करती है. नाउ जो टारगेट है फर्म का, वो मैन्युफैक्चर करने का टारगेट है 2 चेयर्स का. ठीक है, सच्ची ड्राइंग तो मैं बना नहीं पाऊँगा, उससे एक्सपेक्ट भी मत करना. तो चेयर लग रही तो ठीक, नहीं लग रही तो भी ये चेयर ही है. ठीक है, तो फर्म का टारगेट है कि 2 चेयर बनानी है, बट मैं आपसे कहता हूँ कि जो फर्म ने, और एक चेयर को बनाने में 100 रुपीज़ की कॉस्ट है. ठीक है, टोटल कॉस्ट जो लगने वाली है वो 200 लगने वाली है. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. अब मैं आपसे कहता हूँ कि जो फर्म ने चेयर बनाई ना, इसको 50% कंप्लीट किया, मतलब इसको हाफ कंप्लीट किया, इसको भी हाफ कंप्लीट किया. बात समझना, इसको हाफ कंप्लीट किया, इसको भी हाफ कंप्लीट किया, मतलब 50% कंप्लीट किया. इसका काम भी, इसका काम भी. मान लो कंपनी ने इसके लेग्स तो लगा दिए और बेस भी लगा दिया. ठीक है, लेग्स और बेस है, और ये जो अपर पोर्शन था ना, ये वाला जिसको मैंने डैश में कर रखा है, ये अभी नहीं कंप्लीट हुआ है. अब मान लेते हैं कि 50% है. बात को समझना, ड्राइंग में मत जाना मेरी. ये तो चेयर कसम से नहीं लग रही, इसको मिटाता हूँ मैं. 1 मिनट रुको, फिर से बनाता हूँ, 1 मिनट. ठीक है,
अरे ऐसे समझ लो कि ये हाफ कंप्लीट हुई है, मान लो कि चलो पीछे वाला कंप्लीट हुआ है, ये वाला कंप्लीट हुआ है, ठीक है, और नीचे का कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको 50% कंसिडर कर लेते हैं हम। 50% चेयर ये तैयार हो गई है और 50% चेयर ये भी तैयार हो गई है सेम, ठीक है। अब 50% अगर ये चेयर तैयार हो गई है, पूरी चेयर बनने में 100 रुपीज़ लग रहे थे, तो इस चेयर को बनने में 50 रुपीज़ लग रहे होंगे। अगेन दूसरी चेयर भी हाफ तैयार हुई है, वो भी ऐसा ही। इसको बनने में भी कितना लगा होगा, इसको बनने में भी लगा होगा 50 रुपीज़, इजंट इट। और 50-50 मिला के कितना होता है, 100 रुपीज़। अब यहाँ पे ध्यान दो, टोटल जो कॉस्ट थी, जो टोटल जी पूरी कॉस्ट थी वो 200 थी, बट अगर हाफ ऑफ कंप्लीट हुए तो 100 लगा है, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 100 रुपीज़, अच्छा इसको बनाने में 100 रुपीज़ लगे ना, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इन दो हाफ चेयर को बनाने में, इन दो हाफ चेयर, जी दो हाफ चेयर हैं, इनको बनाने में जितने रुपए लगे हैं वो एक फुल कंप्लीट चेयर को बनाने के रुपए के बराबर हैं। बिल्कुल कह सकता हूँ। फिर सुनो, ये दो हाफ चेयर जो कंप्लीट हुए हैं, इनकी कॉस्ट एक फुल चेयर बनाने में जो लगे थे रुपए, जो लगने वाले हैं रुपए, उसके बराबर है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि इसको कंप्लीट करने में हाफ हाफ 100 रुपीज़ लग रहे हैं और एक कंप्लीट चेयर करने में भी 100 रुपीज़ लग रहे हैं, इजंट इट। तो इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो अगर इन दो हाफ चेयर को मैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में कन्वर्ट करूँ तो एक यूनिट ऑफ कंप्लीट चेयर हो जाएगा। इसी का नाम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है। मतलब हाफ हाफ ना लेके मैं बोल दूं कि ये एक चेयर की कॉस्ट के बराबर है। जब मैंने बोला ना कि ये एक चेयर की कॉस्ट के बराबर है, तो ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है, क्योंकि एक्चुअल में तो एक फुल प्रोड्यूस हुआ ही नहीं है, बट मैंने कॉस्ट देख लिया कि एक का भी उतना ही आता है और दो हाफ करने का भी उतना ही आ रहा है, तो दो हाफ को मैं एक फुल बोल सकता हूँ ना। अब ये पेन है मान लो, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, तो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ये एक बोल सकते हैं फुल पेन। अब ये पेन है मान लो, इसको अगर हाफ मैं कर दूँ, अभी तो हाफ अलग अलग होंगे, तो मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि ये एक फुल पेन है। लेकिन कॉस्ट के टर्म में हाँ, ये सही सही बात है, क्योंकि इसको हाफ बनाने में जितना जितना लगा होगा और दूसरे हाफ को बनाने में जितना लगा होगा, कॉस्ट तो दोनों की उसी के बराबर आएगी जितना ही फुल पेन बनाने में लगेगा, कंसिडरिंग दीज फैक्टर्स। बाकी फैक्टर अगर कॉन्स्टेंट ले तो इसी को बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। हाफ हाफ या सर्टेन परसेंटेज को हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन से इनपुट इज 2000। तो इनपुट को पहले मैं इक्वेट करने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास 200 क्लोजिंग स्टॉक है, तो यहाँ 200 लिख के मैं क्लोजिंग स्टॉक लिख देता हूँ, प्लस हमारे पास 50% कंप्लीट है ये, ठीक है। स्क्रैप 250 यूनिट्स है। स्क्रैप कितना है? 250 यूनिट्स। तो स्क्रैप का मतलब बेसिकली लॉस है हमारा, ठीक है। ये हमारा था, ये क्या लिखा था मैंने, 200 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक था, ठीक है, CS। ये हमारा लॉस हो गया। और हमारे पास जो फिनिश गुड्स है वो कितना है, 1550 है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे मेरी बात ध्यान सुनना। 200 प्लस 1550 करेंगे हम, तो आ जाएगा 1750, ठीक है। अगर ये लॉस नहीं भी दिया होता ना, इसको हटा देता हूँ मैं भी, मेरी बात ध्यान सुनो। हमें पहले क्या फोकस करना है, किस पे फोकस करना है, क्लोजिंग स्टॉक पे और फिनिश्ड गुड्स पे। दोनों को प्लस के 1750 आया। मतलब इनपुट दे रहे थे 2000 का, बट हमारे पास है कितनी यूनिट्स अभी, सिर्फ 1750। बाकी कहाँ गई? बाकी सब लॉस हो गया। तो ये है 250 लॉस। अब इस लॉस में से कितना नॉर्मल लॉस है कितना नहीं है वो हम आगे देखेंगे, वो अभी का नहीं, अभी बाद में देखेंगे वो, ठीक है। 250 की 200, हाँ 250, ठीक है। तो 1550 प्लस 200 किया, 1750 आ गया, 250 हमारा लॉस हो गया। अब चेक करो कि नॉर्मल लॉस कितना था, क्वेश्चन से देख के, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 जो है इनपुट ऑफ गुड्स है, ध्यान देना यहाँ पे, और जो नॉर्मल लॉस है वो 10% है। इसका मतलब नॉर्मल लॉस सिर्फ 200 यूनिट्स थी। ध्यान दो, नॉर्मल लॉस कितना था, 200 यूनिट्स। इसका मतलब है 250 में 200 नॉर्मल लॉस है, बाकी 50 अब नॉर्मल लॉस है। ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब हमें निकालनी है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो भाई हमारा 1550 तो पूरा कंप्लीट होगा, 1550 में तो पूरी कॉस्ट लगी होगी। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन तो हाफ ऑफ यूनिट्स का या कम यूनिट्स का निकालते हैं ना, ये तो पूरा कंप्लीट है, तो ये तो ऐड हो गई होगा डायरेक्ट। तो 1550 ऐड कर दिया, प्लस अब हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था ये खाली 50% कंप्लीट है, तो मतलब 50% कॉस्ट ही इंक्लूड होगी इसकी। तो अगर मैं इसको इक्विवेलेंट यूनिट में कन्वर्ट करूँ तो 200 का 50% कितना हो जाएगा, 100 यूनिट, जस्ट लाइक वी डिड इन द केस ऑफ चेयर्स।
2 यूनिट थी, हाफ ऑफ कंप्लीट हो रही थी तो 1 यूनिट के बराबर हो जा रहा था। 200 यूनिट्स हैं, हाफ ऑफ कंप्लीट होंगी तो कॉस्ट किसके बराबर होगी? 100 यूनिट के बराबर। ठीक है, वेरी गुड, तो 100 हो गया। अब इसमें ध्यान देना, इतने में क्वेश्चन खत्म हो जाता है जनरली, बट इस केस में ये थोड़ा टफ क्वेश्चन लाया हूँ मैं। इस केस में हमारे पास जो लॉस है ये 250 है, ये नॉर्मल लॉस के बराबर नहीं है। अगर ये नॉर्मल लॉस के बराबर होता तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता, बट हमारे पास अब नॉर्मल लॉस भी है। और ये अब नॉर्मल लॉस देखो दे रखा है कि स्क्रैप 250 था विच वर 100% कंप्लीट, मतलब इसको बनाने में भी पूरा पूरा खर्चा हुआ होगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 50 भी ऐड करेंगे, ये ध्यान रखना। तो आंसर आ जाएगा 1550 प्लस 50 1600 प्लस 100 1700। ध्यान रखना, अगर अब नॉर्मल लॉस है तो वो भी ऐड होगा इक्विवेलेंट यूनिट पे, ठीक है। अगर अब नॉर्मल गेन होता तो मान लो यहाँ पे 100 यूनिट होते खाली, तो नॉर्मल लॉस 200 था, तो गेन था हमारा 100 यूनिट्स का। अब नॉर्मल गेन को माइनस कर देते हैं। ध्यान देना, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है। चलो, आंसर तुमको पता चल गया, ऑप्शन नंबर 3 1700। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ क्वेश्चन एंड दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन द ईयर 2020। तो आप ये कर लोगे अगर, इसका मतलब है कि ठीक ठाक प्रिपरेशन है, ठीक है। क्वेश्चन सेइंग 8000 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड, 5% is the normal loss, 6600 units are the finished goods that is transferred to the next process. WIP, that is closing stock or work in progress, is basically your 1000 units, ठीक है। Find the equivalent unit, okay। तो अब पहले लॉस निकालो कितना है, 8000 6600 प्लस 1000 इज योर 7600, तो लॉस कितना हुआ, 400 का लॉस हो गया यूनिट्स का, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो इसमें लॉस दे रखा है वो कितना है, 5% इज द नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस वी कैलकुलेट ऑन द इनपुट्स। सो 8000 का 5% मतलब 8000 डिवाइडेड बाई 20, 5% इज 1/20 ना, तो 1/20 जब करेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा एग्जैक्टली। तो ठीक है, जो लॉस है वो कंप्लीट नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लॉस कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, देखो इतना आसान क्वेश्चन आया। इक्विवेलेंट यूनिट यू हैव टू फाइंड आउट, तो फिनिश्ड गुड्स 6600 प्लस जो WIP था 1000 यूनिट्स विच इज 60% कंप्लीट ओनली, तो कॉस्ट भी 60% लगेगी। इक्विवेलेंट यूनिट पे कन्वर्ट करने के लिए 60% ऑफ 1000 यूनिट इज 600, इट बिकम्स योर 7200 यूनिट्स, ठीक है, 7200 यूनिट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, सो वी हैव डन 5 क्वेश्चंस टुडे एंड वी हैव नाउ द होमवर्क क्वेश्चन दैट यू हैव टू गिव मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तभी काम बनेगा, वरना काम नहीं बनता है। डैश मीन्स कन्वर्टिंग द इनकम्प्लीट प्रोडक्शन यूनिट टू देयर इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स, तो उसको बोलते क्या है, यहाँ से देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इनकम्प्लीट प्रोडक्शन यूनिट को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ फुली कंप्लीटेड यूनिट्स में, तो उसको मैं क्या बोलते हैं, अभी पढ़ा है पीछे हमने, इक्विवेलेंट यूनिट्स बोलते हैं कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बोलते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट्स बोलते हैं कि बोथ ए एंड बी बोलते हैं कि नन ऑफ द अबव, मतलब ये और ये दोनों बोलते हैं कि इंडिविजुअली ये बोलते हैं, सिर्फ ये बोलते हैं कि ये बोलते हैं। सो यू शुड गिव मी दिस आंसर इन दी कमेंट सेक्शन कि आंसर क्या है, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।